Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Yeah, can you hear me? Am I audible? Yes. Yeah, Yes. I think Rajeshwari Ingre is left. No. She has came? No, Ingre, she's left. She's left. she has? Left. She hasn't joined it. Okay, okay. Yeah, so now everybody is there. Good evening. Good evening. Good Yeah. evening. So one second, we'll first have a photo session. Photo session. One second. हाँ हाँ सर सब ठीक से अपने बाल भी ठीक कर लो Can you see me? No. 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 Now? No. Yes. I still don't see you, Trupti. Anybody can see me? एक second, No. Not. Yeah. कौन है इस photo में जिसको आपको दिख रहा है? Okay, done. So today what who is going to start because today is our last session Yes. and for last meeting for this for this discussion तो कौन करने वाला है start? I haven't read that. If Rajshri or Yes. anyone else has I, read the, I have done yeah, the so you Dahi can Handi start. thing. Yeah, So can start. yes, I'll Rajesh, go start. ahead. Yes. Okay. So this is a public interest litigation. The name is Hmm. Swati Sayaji Patil versus State of Maharashtra. And this case is to take preventive measures restraining the Govinda teams in the state of Maharashtra from raising human pyramids of more than 5 layers. Okay. So Hmm. there was a news article where Dakshak Keleskar, a 26-year-old Govinda, he was at the pyramid's base when it crashed, and a fortnight after that he sustained a spinal fracture during the Dahyandi celebration, and he succumbed to his injuries at Sion Hospital on Saturday. A fracture of the C5 vertebrae and injuries to the spinal cord had rendered Dakshak quadriplegic. Though he was immobile through his hospital stay, the fact that he was conscious and muttering occasionally had given the parents hope. His father Lakshman said that he didn't imagine that they would be taking his body home. Dakshak did not have an insurance, though he was participating in Dahi Handi since he was a teenager as a member from a pathak named Dharmavir Govinda.
and he had a bike accident 3 years ago, so he couldn't climb on the higher tires of the human pyramid, so he stayed on the base level. Okay. So the Arun Patil of the Dahihandi Samanvay Samiti, he said that mandals can, in his defense, he said that mandals can only provide rupees 10 lakh to cover a Govinda for premium as nominal as rupees 75. Yet they see such unfortunate events, and he was also told that if there is one less pair of shorts or t-shirts, it's okay, but 75 rupees premium as nominal everyone must pay. Like people do not take nominal premium insurance, which is as less as 75. They can waste 300 rupees on t-shirts and everything, but they don't take insurance. Okay, so in the entire state of Maharashtra, on the day of Dahi Handi, this day, Janmashtami, it is said to be the birthday of Lord Krishna, and Dahi Handi is organized. In the said event, the Dahi Handi is hanged on a rope at a substantial height. The performers, who are commonly known as Govindas, have their associations called as mandals, and in this mandal they form a human pyramid, and whoever breaks the Dahi Handi is the successful one. So now here the petitioner has filed a PIL before the court, saying that it is a dangerous event. It is an adventurous sport, and on account of the accidents which are happening while performing the event, they and where Govindas have received severe injuries, making them paralyzed for their entire life. Okay, so he has filed PIL seeking certain directions to ensure that the safety of Govindas participating in the Handi event is not compromised. Now, the learned counsel for the petitioner, who is Mr. Nevshe, he submitted that various accidents take place, and he can produce voluminous record showing that many Govindas have become permanently paralyzed. They have suffered spine injuries, and their entire life has become miserable. So he also submitted that the state has failed to take any positive action for preventing such dangerous acts. Because of that, they have no other remedy to come to the court and ask for jurisdiction under the Article 226 of Constitution of India. Now, the Article 226 of Constitution of India empowers the High Court to issue to any person or authority, including the government, directions, orders, or writs. Now, the Additional Solicitor General. Sorry. Hello. Yeah. Okay, so the Additional Solicitor General, he submitted that the state is not treating the present PIL as an adversarial litigation. He submitted that the state has to be concerned with the safety measures, and the state is not doing anything. They are not doing anything to avoid the accidents and for providing immediate medical aid to the victims. And the state has not given any directions that the people below the years of 18 years should not participate, and because of that there is no legislative support, and this is the work of the legislature. That's why the court is not permissible to direct such a guidelines. Okay, and as about the height restriction, that also the court does not have power. And about the age of the child, he said that according to the Child Labor Act 1986, the only restriction that can be imposed is that the children who are below the age of 14 years, they cannot participate in the event. And this, he said, on the basis of that whoever wins or whoever loses, they get an amount, and this amount can be taken, that they come into the Child Labor Act provisions. Okay. So now the first issue which was there was whether the government took necessary steps for the safety of the children. So
every one of us attends these Dahi Handi festival, whether through TV or whether through our social media. So, what do you think? Does the government take necessary steps? I think no, nowhere it is seen that government is taking necessary steps because uh, sometimes I see there are multiple layers. बहुत सारे लेयर्स चढ़ाए जाते हैं एंड छोटे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे कोई प्री ये नहीं होता है कि उसका वेट, उसका हाइट वो झेल सकता है क्या, इतना सारा वेट, इतने सब लेयर्स, उसकी कैपेसिटी है क्या, उसको प्रीवियसली कुछ एलिमेंट है क्या, इज ही सफरिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंट, प्रीवियसली डिसीज, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये सब चीजें नहीं कंसिडर करते हैं, ये सब साइंटिफिक टच नहीं देते हैं दही हांडी में किसी भी पर्सन का। जस्ट ये लोग 50-50, 100-100 रुपए सबसे निकालते हैं, टी शर्ट लेते हैं, बच्चों को वही अच्छा लगता है और दे फेल प्रे टू सच टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग। छोटे छोटे बच्चे भी इसके चलते हुए चले जाते हैं दही हांडी में, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। एंड इट वाज लाइक हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है कि जितनी बड़ी दही हांडी, जितनी ऊपर दही हांडी, उतना ज्यादा ये प्राइज रहता है। तो इसके चक्कर में लोग अपना मतलब सब कुछ गवा देते हैं, वो चढ़ जाते हैं इतना ऊपर एंड व्हेन दे ब्रेक दैट हांडी, इतने ऊपर से गिरते हैं वो लोग कि बहुत डैमेज होता है। Yes, right. सो इस इशू पे ये गवर्नमेंट को पूछा था कोर्ट ने कि एक रिटर्न स्टेटमेंट भेजो। तो इस बेसिस पे विजय दामोदर पाटिल है जो डिप्यूटी सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट मंत्रालय के, उन्होंने रिटर्न में दिया था कि उनके हिसाब से ऑर्गेनाइजर जो होते हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट टू गोविंदास, कुशन लेयर्स एट द वेन्यू ऑफ फेस्टिवल। उसके ये तो हम देखते नहीं है कभी भी हेलमेट वाले सेफ्टी बेल्ट, ये रेयरली होते हैं, और कुशन लेयर्स तो बिल्कुल नहीं, कुशन लेयर्स के नाम पे चद्दरें बिछा देती है। ओके, so according to him there has to be a local monitoring committee which should have in charge of police station, board officers of the corporation, local elected representative or such other person who is respected in the said locality and does not have any criminal record and prior permission from the local police. बट एज पर मी ये सारा सिर्फ लिखने में है, इन सबको इस बेसिस पे बुलाया जाता है कि वो चीफ गेस्ट होते हैं, बाकी वो काम तो कुछ नहीं करते। आई थिंक सो एज पर व्हाट आई हैव सीन। ओके, सो यस, ये है ही है, ये सब तो लाइक वही प्राइज देना एंड वो एक अपनी पिक्चर क्लिक करना, चीफ मिनिस्टर जो गेस्ट में आते हैं, बाकी वोट के लिए करते हैं सब वो जो चीजें। गोविंदा बच्चों रहता को छोटा मोटा पैसा देना है और उनसे वोट ले लेना है, हाँ झोपड़पट्टी में जाके ये सब प्रचार करना है, इतना बड़ा प्राइज लगाना है ताकि बच्चे जाके उसमें से फंस जाए और ये सब उनको मिल जाए। या राइट। और सब ये लोग करते हैं और बाकी तो कोई करेंगे नहीं। हाँ, अवेयरनेस नहीं रहता है इसमें, गाइडलाइन नहीं देते, जस्ट उनको इतना टाइम भी नहीं रहता है उनको क्या करना है, कोई फ्रैक्चर हो रहा है या अपनी लाइफ से खेल रहा है, ये सब उनको नहीं पड़ी है। बट इसमें गवर्नमेंट भी क्या करेगा, लाइक कुछ नहीं कर सकता है ना, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तो यही होते हैं जो गोविंदा में पार्टिसिपेट होते हैं, बिकॉज उनको एक अगर उनका क्या बोलते हैं बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो सोचते हैं कि यार प्राइस मिलेगा, जीतेंगे तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा ये सब में, प्राइस में। तो ये सब भी रीज़न होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो दही हांडी है, ये ऐसा एक्ट है कि जो अंडर सुपरविजन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आना चाहिए, जैसे मलखाम रहता है, ये सब उसी कैटेगरी में आना चाहिए और जो ट्रेंड पीपल है उनको ही करना चाहिए। और अगर एरिया में के कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो ये परफॉर्म करना चाहते हैं तो प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी उनको ट्रेन किया जाए और बाद में ये परफॉर्म किया जाए। बट ये इंडियन फेस्टिवल्स में आ जाता है ना, तो इंडियंस के हिसाब से लाइक ये तो बहुत अच्छा काम होता है, दही हांडी ये सब। इवन दो इट इज अच्छा, तो पर बट ये रिलीजियस रिलीजन में आ जाता है तो इसके लिए लोग कुछ सोचते नहीं है, बोलते हैं जा कर भगवान के होना नाम पे चाहिए करो। ऐसे।
हाँ करेक्ट करेक्ट, बट कैसा पुराने लोग बहुत अच्छे हेल्दी थे। और मतलब वो टाइम पे सब कुछ अच्छा अच्छा खाना भी था। अभी पॉल्यूशन, लोगों को तकलीफें बहुत है, और लोग इतने पुराने जैसे स्ट्रांग नहीं रहे हैं। तो लोगों ने ये भी सोचना चाहिए कि ये अपने बस की बात नहीं रही है। ये सब कुछ पुराने लोग करते थे, ठीक है, पर अभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंस बहुत आगे गया है। ऐसे एक्ट करने की वजह से मोचे आ सकती, एक्सीडेंट हो सकते हैं। और पता नहीं है कि आज तकलीफ नहीं होगी, पर जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब ये सब चीजें हम लोगों को अफेक्ट करेगी हमारे लाइफ में। एक्चुअली दही हांडी ख्याल से मुंबई में देखा जाता है, इन अदर्स दही हांडी आई थिंक आई एम राइट और नहीं, ऑल ओवर महाराष्ट्र देख किया जाता है, इवन अदर स्टेट में भी हुआ किया जाता है, बट मोस्टली बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में ही होता है, हाँ हाँ क्योंकि हमारे यहाँ पे वो तालीम मंडल ज्यादा रहते हैं ना। हाँ ये हाँ अदर में ये ये मित्र मंडल, वो मित्र मंडल। एक्चुअली Yeah, can I say hello? यस प्लीज। Yeah, हर एरिया yeah. में तो दही मैं हांडी एक बार है ना, मैं वापस वो गाइडलाइंस सुनना चाहूंगी जो कोर्ट ने दिए हैं। हाँ हाँ, एक अ, मिनट। तो कोर्ट के हिसाब से पहले तो दे शुड प्रोवाइड हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, हम्म कुशन लेयर्स, और हम्म मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए वेयर पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वार्ड ऑफिसर्स और लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और प्रायर परमिशन फ्रॉम द लोकल पुलिस। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि ये कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई के हैं, वो गाइडलाइंस मैं बाद में बताती हूँ, आप बताओ आगे इसके ऊपर। ओके। टू माय ओपिनियन, देखो ये दही अंडे का जो खेल है, दिस ऑल फेस्टिवल्स, दिस इज नॉट फ्रॉम नाउ, दिस इज फ्रॉम हु स्टार्टेड तिलक, अपना जो तिलक कौन ये थे फ्रीडम फाइटर थे, वो टाइम से चला। But at that time, as Rajeshri said, that time the food and everything, the contents and everything were very, very good. But nowadays, after कुछ ना कुछ होने के बाद फिर जैसे लोग जागे। So एक केस हुआ था which I also heard because I used to stay in the town side, कोई छोटे बच्चे का भी हुआ था, कुछ लोग पैरालाइज्ड भी हो गए इस केस में, काफी सीवियर इंजरीज भी हुई। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सब गाइडलाइंस दी। But this as far as this festival is concerned, this festival is like a religious. Of course, it is as Mansi also said, that is a religious and auspicious. So everybody plays. But now such a situation has happened in last, I think, 10 years. This thing has been seen. There has been a some political game also in that. There are many hands behind that. And मैं देखती हूँ ना, तो थाना एक जगह है जहाँ पे वो वीडियो टीवी पे बताते हैं। तो थाने में सब लोग घुस जाते हैं, 11-11 लाख की एंट्री फी रहती है, एंड व्हाट नॉट, just to say that is a political game. But first it was not. I had seen the players enjoying enthusiasm with enthusiasm, and they had more big layers. हाँ, ऐसा नहीं कि layers, और गिरे भी नहीं कभी, और कभी कुछ हुआ नहीं पहले वाले जमाने में। बिकॉज आई हैव बीन स्टेइंग, नाउ इट्स ऑलमोस्ट, आई एम स्टेइंग इन बॉम्बे। यू ऑल विल मस्ट बी आफ्टर मी ओनली, मेरा एज के हिसाब से। तो उस वक्त आई थिंक दिस इज 20 years बैक व्हेन आई सीन इन बॉम्बे व्हेन आई वाज स्मॉल, 20 to 25 years बैक। तो तभी तभी ये सब इससे भी बड़े बड़े सर लगाए जाते थे, मतलब ऊपर तक थे, और बच्चे ऊपर टॉप पे, हेलमेट नहीं था, कुछ नहीं था। आई सीन इट इन माय फ्रंट है। और नीचे जो लोग, द अमाउंट ऑफ क्राउड यूज टू स्टैंड, उनको पकड़ने के लिए, पहले के लिए कोई मॉनिटरिंग नहीं था, कुछ नहीं था, कभी ऐसे केसेस नहीं हुए। ये पिछले 10 साल से some cases have come up. Now what is that, why it is happening, that we cannot find out, because उस वक्त after this, because they never thought, the police also never thought कि ऐसा भी होएगा करके आगे। But now when it has gradually taken this space, means this particular thing is happening, so now I think the guidelines are necessary. In fact हमारे पार्ला में
वेर आई स्टे, पहले तो सर बड़े बड़े खर से होते थे, लेकिन बाद में फिर उसमें उन्होंने ना दे बॉट दे डिडंट इवन वो उसको रस्सी से लटका के वो भी नहीं किया, वो क्रेन लाके क्रेन के ऊपर क्रेन पे वो रहते थे। ओके, और वो नीचे तक रहता था, हार्डली एनी 2 to 3 थर्स चालू होने लगे। फिर जो उसके बाद जो बंद हो गया वो अभी आई थिंक लास्ट 2 इयर्स तो देखा ही नहीं है दहीहंडी, लेकिन पहले उसके पहले भी छोटे छोटे हिस्से भी कम हो गए ऑन, एंड इवन द पंडाल्स वर also made less. So pandals means this the people who are allowed to in town side. It is a very big festival. Each mandal has its own Govinda. Even the ladies Govinda is in Goregaon. The ladies Govinda is also on a very high level. Of course लेडीज लोग ने पहले कभी ये पार्टिसिपेट नहीं किया था इस सब चीज में, एंड सो वी डोंट नो द अमाउंट ऑफ क्या उनको होता था एंड व्हाट इज द एंथुजियाज्म दे हैव इन डूइंग स्पोर्टिंग। क्योंकि हम लोग तो स्पोर्टिंग करते हैं, लेकिन उन लोग को एक अलग अलग से वो उस वक्त ही है ना, वो जरूर बोलते हैं ना स्पोर्ट, वो गणपति के वक्त और इसके वक्त ना दे आर वेरी अट्रैक्टिव, because that is a very minimum level where these people get to enjoy in Bombay. Apart from क्योंकि डेली लाइफ में अपना रूटीन खाओ पियो काम करो झगड़ा ये करो वो करो, तो उससे ये कुछ अलग इंटरेस्ट, यू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैनॉट बी स्टॉप। So we that is a part of an enthusiasm and festival. As far as the guidelines which has been given, अगर if it is given and if it is not been followed, then that is wrong. So that has to be followed. हाँ, कुछ कुछ इसमें मैंने वो थाने के इसमें बाद में देखने लगा कि बच्चे लोग को भी है, लेकिन बच्चे लोग को हेलमेट और वो सेफ्टी मेजर्स ज्यादा देने लगे। So some level it is there, but it is at some levels in local places ना you will not find. But in this Khana ka thing, which if you see on that video na, sorry, in see on that channel na, which is specifically capturing that particular मंडल का जो रहता है, तो उसमें हम लोग प्रिकॉशंस के बगैर अलाउ ही नहीं करते अंदर जाना। ओके, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स और ये सब उन लोग प्राइस लेवल भी हाई रहता है, सो दे टेक इन दैट। बट इन लोकल अभी भी वो लोकल जगह पे तुम लोग को नहीं, तो इन दैट केसेस द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज टू मॉनिटर, और या फिर दे शुड कैंसिल दैट पर्टिकुलर हैपनिंग इवेंट इन दैट पर्टिकुलर पे। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि ऐसा नहीं कि बंद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस और भी ज्यादा हो सकते हैं इसमें, लेकिन वो दैट हैज टू बी नॉट अबाउट इट। लेकिन ये कोर्ट का एक जो राजेश जी ने कहा, कोर्ट डजंट हैज द राइट, वो क्या था? हाँ, कोर्ट ने ये बोला कि ये जो एज और जो हाइट है, ये दो चीज लेजिस्लेचर के इसमें आता है, तो गवर्नमेंट ने वो डिसाइड करना है, ये कोर्ट के हाथ में नहीं है कि क्या कितना होना चाहिए, वो सिर्फ गाइडलाइंस दे सकता है। Okay. So court can give a guideline only as far as other cases also. लेकिन जहाँ तक उसको एग्जीक्यूशन जैसा है बोलते हैं, वो एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में है। राइट, गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड कि क्या और इसमें अच्छे से कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द आई थिंक that's what the our local police and local government should understand कि इसमें भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बंद होना चाहिए, because एक्चुअली that is जो also ऑर्गेनाइजर होते हैं जहाँ के भी एरिया के हैं एंड जो पार्टिसिपेट होते हैं, उनको अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो मे बी चांसेस कम हो जाएंगे ये एक्सीडेंट्स के। एंड जो ज़्यादा बहुत सारे लोग नशा भी करते हैं जब ये पार्टिसिपेट करते हैं ना, ये इसमें लेने के लिए, तो बहुत लोग नशे में रहते हैं, तो वो भी या एक चेक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि और मैंने छोटे देखा बच्चे है भी कि वहां पे। बहुत, हाँ, जो आदमी जो बड़े रहते हैं एज के, वो लोग दारू पी के वो लोग जाते हैं, बिकॉज अब वो क्या रीजन है पता नहीं, बट ये भी एक चेक होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजर जो होगा उनका, तो वो चेक करेंगे तो वो भी एक सेफ्टी हो सकती है। राइट। और जो छोटे बच्चे रहते हैं, एकदम छोटे स्कूल जाने वाले जो बच्चे रहते हैं, उनके बोन्स बहुत प्री ब्रिटल होते मैच्योर हैं, हाँ। लेवल में रहते हैं, वो फ्यूज नहीं हुए रहते हैं वो टाइम पे। और उन ऐसे सिचुएशन में अगर उनकी हड्डियां टूट गई किसी वजह से, तो वो इट इज अ लाइफ टाइम डैमेज। तो उनका एज का कुछ बार होना चाहिए कि इतने इतने छोटे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, सो गोइंग फर्दर, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है मुंबई के, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट में ये दिया कि अकॉर्डिंग टू देम डोनेशंस फॉर द फेस्टिवल्स हैव टू बी टेकन विद प्रायर परमिशन,
Then there should be enough cushion layers. Then the Govinda should give prior intimation of the vehicles they are going to be using. Then the vehicle to be used has to be certified as fit by the transport officer. Then the identity proof of all the participants should be registered, and they all of them should be insured. And the organization should provide chest guard, helmets, safety belts, and that has to be a strong net of nylon of sufficient size to be kept ready wherever the govindas are going to fall. Then there has to be medical help nearby, which can be given immediately. It should consist of medical first aid kit, and the ambulance should be ready. Then the organizers should treat the govindas, injured govindas, immediately and move them to the hospitals without any delay. Now, the stage where the program is to be done, it should be constructed properly, and there should not be unnecessary crowd on the stage, because not only the govindas fall down, but when they fall down, then the crowd also gets injured because of them falling on the crowd. Okay, so there should not be any hazardous chemicals along with the water, and the organization should provide mobile toilet, and there should be a prior permission from the municipal corporation, fire brigade, police, and other related departments. Then the vehicles of the Govindas should not have weapons, sticks, loudspeakers, जो हम mostly देखते हैं. Then there should not be any drunken person who should be allowed to participate, and additional police force should be there around the place, and if required, if there is a large public, then there should be the use of drones. Okay, so according to the state and these two written statements, the court said that the state is taking necessary steps for the protection of these people, and that's why it does not have to give anything. Okay, now the second issue was whether the court can direct the state government to prohibit the children below the age of 18 years from participating in the Dahi Handi, and as to whether the court can issue a direction to the state government to ensure that the height of Dahi Handi should not be more than 20 feet. Okay, so there are two things in the second issue, that is first is age and the second one is height. What do you think about that? What should be there? Yeah, as I said कि एज तो होना चाहिए because I told you कि जो बच्चे रहते हैं उनका प्री मैच्योर स्टेज में बोन्स बढ़ते रहते हैं, तो अगर उनको ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं और बोन्स को इंजुरी होती है तो इट इज़ अ लाइफ टाइम उनका लॉस हो जाता है, एलिमेंट्स हो जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. और अगर इन केस की वो बच्चा डिसेबल हो जाता है तो इट इज़ अगेन वेरी हाईली, इट इज़ अ बिगेस्ट लॉस टू हिज लाइफ, और उसका कॉस्ट कुछ नहीं हो सकता, उसका कंपनसेशन का कुछ वैल्यू इट इज बिट मोर कि कोई मतलब कॉर्पोरेटर या फिर म्युनिसिपल corporation or government also cannot give him a compensation. So first of all age restriction should be there, and height कि मैंने देखा कि जितना ऊपर चढ़ा देंगे ये लोग उतना बड़ा अमाउंट भी रखते हैं, तो ये लोगों की वजह से उनका मन ललचा जाता है, तो ग्रिड पैदा हो जाता है उनके आगे, तो वो कुछ भी करने के लिए कितना भी ऊंचा चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो उनके हाइट में भी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए सो दैट लेयर्स मिनिमम हो जाएगी, और जो गिरने के चांसेस है या फिर द मोर पीपल, जितने ज़्यादा लोग हो जाएंगे उतना ज़्यादा लोड भी होगा लोगों के कंधे पे, और वो पिरामिड हिल भी सकता है और उसकी वजह से ज़्यादा इंजरी हो सकती है. सो हाइट और एज रिस्ट्रिक्शन शुड बी देयर. I think height and age restrictions होनी चाहिए अभी, क्योंकि as everything requires a development, so and a change, तो इसमें भी होना चाहिए. As far as the looking at the last 10 years data, if you can see, and the government must be seeing in last 10 to 15 years data,
So they must have observed that something is somewhere is going wrong, and there were and as gradually अगर cases कोई बढ़ते हैं, so definitely they have to take some actions. They cannot sit with their hands folded. So as per which this is a right issue which has come up, and that according to that issue they have to take steps towards it. Earlier it was not there because it was not required, but now you have to have a narrow view, or you can have a view over all the elements of this particular festival, because it is very much necessary as far as today's ongoing process of it is going on, whatever is happening in this particular festival itself. Yeah. So अभी कोर्ट ने इसमें पता है क्या बोला? The court we had a topic in our basic years that there are three parts and they are judiciary, executive and legislature. Okay, तो ये वाला पैरा सेम कोर्ट ने बोलते हुए कहा कि the judiciary is one amongst the three branches of the state, the other two being the executive and legislature. Each of the three branches is co-equal, each has specified and enumerated constitutional powers. The judiciary is assigned with the function of ensuring the executive actions according with the law, and that laws and executive decisions according with the constitution. The courts do not frame policy or mandate that a particular policy should be followed. The duty to formulate policies is entrusted to the executive, whose accountability is to the legislature, and through it to the people. The peril of adopting an incorrect policy lies in democratic accountability to the people. This is the basis and rationale for holding that the court does not have the power or function to direct the executive to adopt a particular policy or the legislature to convert it into enacted law. It is wise to remind that there has to be limits, and it is wiser to enforce them without exception. अब ये बोल के कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए. ओके, बट स्टिल Yeah. in order to ensure avoidance of accidents, उन्होंने क्या किया? डायरेक्शंस दिए खाली to the state government to restrict the participation of the govindas who are below the age of 12 years and to restrict the height of dahi handi to 20 feet. ठीक है, मतलब ये खाली डायरेक्शंस है, ऐसा नहीं है कि फॉलो करना ही है. इट इज नॉट अ रूल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, it is further to be noted that it is not only in the event of Dahi Handi that the accidents take place. Even in the sports like cricket, gymnastics and aerobics, at times innumerable accidents have taken place. Very recently, one of the eminent medical professional residing in Bombay died of cardiac arrest when he went for jogging. If we do so, it will be a total encroachment upon the powers of the legislature and executives. उन्होंने क्या कहा अभी कि ये जो मेडिकल प्रोफेशनल है, ये जॉगिंग करते हुए कार्डियक अरेस्ट हुआ. ऐसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो वी कैन डू एनीथिंग. दिस इज व्हाट दिस सेड. And they also said that if the legislature finds necessary, then they can put a restriction regarding the age and the height. However, they don't want to interfere with the powers of the legislature. Okay, this is what they said. And इसके बाद ये चीज मीडिया में घूमी कि इस सिर्फ ऐसे मजाक बना के मतलब छोड़ दिया ये केस को, कुछ किया ही नहीं कोर्ट ने, जो भी है लेजिस्लेचर में डाल दिया ऐसा. तो अभी क्या उसका स्टेटस है? स्टेटस तो उसका अभी कुछ नहीं है, लेजिस्लेचर के ऊपर है. और ऐसा बोला है कि द लेजिस्लेचर इज येट टू मेक द नॉर्म्स, और उन्होंने अब तक कुछ बनाया नहीं है. यही वाला जो अभी सारे उन्होंने पॉइंट्स थे वो सारे बस घुमा रहे कि हमने तो कर लिया, इतने पॉइंट्स रखे हैं, हेलमेट वेलमेट दे रहे हैं, हो गया ऐसा. बस ये सब पॉलिटिक्स के लिए करते रहेंगे. हाँ, ये पॉलिटिशियंस के लिए बेनिफिट के लिए किया हुआ है, ताकि ये वोट जमा कर सके लोगों में जा जाके, और उनका खाली फुकट का अटेंशन सीख कर सके. और कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, यही चलते रहता है एक्चुअली. और ये तो एक्चुअली स्पोर्ट्स में ही आ जाएगा. एंड गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकता मेरे ख्याल से. इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, उनका इम्पोर्टेंट रोल है. अगर वो सेफ्टी देंगे तो आई थिंक ये नहीं होगा.
आई थिंक तो मेरे ख्याल से तो कोर्ट ने डिसीजन लिया है क्योंकि व्हाट मतलब ये कोर्ट के हाथ में आई डोंट थिंक सो बिकॉज इन मेनी केसेस आई हैव सीन नॉट ओनली इन दिस स्पोर्ट्स फील्ड बट ऐसे कई कई केसेस जहाँ पे हम लोग ने देखा होगा कोर्ट ने अपना हाथ खड़ा कर देता है जहाँ तक PIL है राइट Yes. कुछ कुछ केसेस ऐसे रहते हैं कि उसमें कोर्ट कुछ कर नहीं सकता दे कैन ओनली प्रोवाइड अ बिकॉज गाइडलाइन रिलीजियस में आ जाता है ना। यस ये तो नहीं तो फिर अगर 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 वो सचमुच कर सकती थी तो अभी तक यूसीसी भी हो सकता था यूसीसी है फिर ना वो रिलीजियस का डिपार्टमेंट आ जाएगा कि तू यस यस एक तो अपने क्या कंट्री में यूसीसी भी लागू हो जाता था क्योंकि कुछ चीजें ऐसी ऐसी होती है ना दैट कोर्ट होने के बावजूद वी बीइंग द लॉयर्स आल्सो इफ वी सी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि ये चीज है लेकिन वो चीज में हम लोग कौन से लेवल पे जा सकते हैं और वो कर सकते हैं दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स बिकॉज वो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा पावर रहता है और पावर आफ्टर ऑल इवन इफ कोर्ट इज देयर द पावर अराइज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम आई राइट Yes. जो गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट कितना भी कोर्ट करे कितना भी कोर्ट बोले कितना भी हम लोग बोले बट आफ्टर ऑल द स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है द तीन लेवल्स है एग्जीक्यूटिव अपना लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी जुडिशरी तो हम लोग है बट जुडिशरी कम्स ऑन द सेकेंड पार्ट Hmm. am I correct? Not on the first part. Judiciary is the second level. So the first level is definitely legislative. तो जो बनाता है लॉज को अगर उसको ही जब तक वो कुछ नहीं करे कोर्ट कुछ कर नहीं सकता ही दे विल टेक अ डिप्लोमेटिक व्यू ओनली Yes, मैं दोनों correct. तरफ तो ऐसे में दे आर राइट ऑन देयर प्लेस दे क्योंकि स्ट्रिंजेंट एक्शंस नहीं ले सकते बिकॉज उसमें ऊपर के लेवल का क्या उनको प्रेशर है दे ओनली नो वो चाह कर भी वो नहीं कर सकते सो दिस एक्शंस दिस एज मानसी सेड दिस हैज टू बी इन द लेवल ऑन द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको ही या फिर स्टेट को अपना अपना अपने अपने लोगों का फिक्र हो तो फिर ये स्पोर्ट्स पे लेवल वो बोलते वो तो सोचते होंगे अरे रोज अपने इधर इतने केसेस होते हैं कहाँ पे इधर दे इसमें देखने के लिए जाए ऐसे सोचने वाले भी है तो ये इसमें स्टेट को ही कुछ करना पड़ेगा वो सेंट्रल और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सब इसमें कर नहीं सकते जो ऑर्गेनाइजर है उसको ही थोड़ा ये करके प्रेशर में डाल के अगर वो ही कुछ मॉनिटरिंग करे और स्टेट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे पुलिस है अपना BMCs है BMC म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है so these all when they all come together and give some guidelines भी नहीं stringent actions तो ही इसमें कुछ बदलाव आ सकता है नहीं तो फिर हाँ ऑफ कोर्स एज और इसका जो किया है दैट शुड बी देयर दैट वो डेफिनेटली अच्छी अच्छी बात अच्छी गाइडलाइन है और इश्यू भी है वो अच्छा है बट और भी हो सकता है लेकिन इस लेवल पे ही हो सकता है ऊपर के लेवल पे कुछ नहीं कर सकता तो कोर्ट के इसमें कुछ नहीं कर सकती आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये तीनों जो बॉडीज है, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी, दे आर इंडिपेंडेंट, ऑल्दो दे आर कनेक्टेड बट दे आर इंडिपेंडेंट। सो इनका एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ना आ जाए, इसलिए ये लोगों को अपना जो वर्किंग कल्चर है वो सेपरेट दिया गया है, ताकि नीडर होके वो अपना काम कर सके, एक दूसरे के प्रेशर में ना आए, करप्शन ना हो, मतलब ज्यादा करप्शन ना हो, इसलिए ये लोगों को सेपरेट किया गया है, इनके पावर्स डेलीगेट सेपरेट किए हुए हैं। तो जुडिशियरी में अगर कोई सेंसिटिव बंदा अगर आता है, सब बहुत सारे पावर्स जुडिशियरी में है, ऑलमोस्ट ऑल पावर्स, अगर कुछ डिसीजन पास होता है तो दैट कैन बी डिस्कस्ड इनटू लेजिस्लेचर और उसका लॉ भी इनेक्ट हो सकता है। और अगर लोग हमारे जैसे विसल ब्लोअर्स, एडवोकेट्स, सोशल एक्टिविटीज अगर कोर्ट में जाके ऐसे PIL डाले तो मे बी एक नया उसको मोड़ आ सकता है, लोग इसको बहुत इसमें देख सकते हैं, बहुत इश्यू होके देख सकते हैं, और मे बी कोई अच्छा जज आए जो नीडर है और जिसको सही में कुछ चेंज, सोसाइटी में कुछ चेंज और अच्छा करने का सोचता है, और वो दोनों चीजें देखता है कि ये जो दही हंडी फेस्टिवल है, ठीक है, ये रिलीजियस अफेयर है, इसमें से कम इंटरफेयर करके सेफ्टी मेजर के रिलेटेड
कितना अच्छा एक्ट लाना चाहिए, अगर ऐसा सोचता है तो बात बन सकती है। Yeah. ऐसा It's बोलते हैं ना only कि that दही हांडी क्या है। then that is only the loophole. what Ray is saying, that is only the loophole. अगर वो या सचमुच हो जाए ना तो काफी कुछ अपने वुमेन से लेके, ये तो दही अंडी स्पोर्ट्स है, हम लोग कितना अनसेफ है, वुमेन वुमेन्स देख रहे हो, तो अगर वो भी स्ट्रिंजेंट होता है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी? राइट। तो वो भी एक सोचने वाली बात है कि अगर वुमेन्स अनसेफ है, वुमेन्स के साथ क्या हम लोग देखते रहते हैं, तो प्रायोरिटी कौन सी देंगे? स्पोर्ट्स को देंगे कि सेफ्टी को देंगे कि किसको देंगे? बट एज यू सेड कि कर हो सकता है अगर कोई अच्छा लीडर हो आए तो, बट समहाउ देर इज अ करप्शन पार्ट इन दिस, समहाउ प्रेशर, हम लोग बोलते हैं कि दे आर इंडिविजुअल बॉडीज, लेकिन सब किधर ना किधर होता ही है, वो कनेक्शन होता ही है, सीन मेनी टाइम्स इन दिस, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन उसमें बदलाव आ सकता है अगर पीआईएल जैसे बहुत सारे लोग उसमें एक एक जुट होके कुछ लॉ, उनको कोई होके, और जज भी वैसा होना चाहिए फिर तो दैट इज ओनली द डेमोक्रेटिक पावर। वही वो अगर हो सकता है तो डेफिनेटली देर कैन बी अ चेंज, लेकिन वो उसके हाथ में जो पावर्स है उसका ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि एवरीबडी इज प्रेशराइज्ड टू एक्सेप्ट इट, तो वो वैसे होना चाहिए, तो दैट इज द बेस, नहीं तो फिर इट्स अ लूप होल, दैट इज ओनली द लूप होल। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि चलो हम लोग बोलते हैं कि वुमेन के साथ बहुत कुछ होता है, या आई एग्री, बट वुमेन के लिए स्टिल देयर आर लॉज, मेनी लॉज आर देयर फॉर द सेफ्टी, फॉर द सेफ गार्ड ऑफ वुमेन। बट दही हांडी में जो मरने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो लेडीज हैं, जो पार्टिसिपेंट्स है गोविंदा, उनके लिए कोई लॉ नहीं आया है एज सच। तो ये लॉ बनाने के लिए कुछ किया जाए, कोई विसल ब्लोअर्स, लॉयर्स लाइक अस, जो सोशल थिंकर्स है, उन लोगों ने कुछ पीआईएल डाल के इसको बड़ा मीडिया में अगर इशू बनाया जाए तो हो सकता है। अगर इसके ऊपर प्रॉपरली लॉ बने तो स्पोर्ट्स के मामले में आई थिंक स्पोर्ट्स में भी होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स विच वी प्ले, तो प्रॉब्लम कुछ क्या है ना लॉ कि दही हांडी को ना स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वाले लोग जगह देते हैं, और ना ये रिलीजन वाले लोग अपने इसमें सिर्फ रखते हैं, बोलते हैं ये स्पोर्ट्स है, ऐसे इसको यहाँ वहां घुमाते रहते हैं बस। उसको एक कोई कोई खास दर्जा दिया गया नहीं है कि किसमें ये चला जाए। तो मैं तो बोलती हूँ अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो उल्टा अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट के लिए बहुत बहुत कुछ रूल्स है, बहुत कुछ चीजें है। इनका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो ये सब चीजों का ख्याल रखती है। तो अगर स्पोर्ट्स के अंदर जाता है तो उनका तो प्रिवेंटिव एक्शन से लेके रूल अगर ब्रेक होता है, अगर उनके साथ इंजुरी होती है तो सरकार खुद पैसा भरता है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। So the first issue only is to be sort out. The question to your answer is the sport. This is not called as a sport. Once it will be categorized as a sport, then the association, then everybody will have झक मार के इसको इसमें भी rules regulations सब डाल देंगे। हाँ। But this is not यस, categorized, जैसे लंगड़ी भी शायद नहीं है, लंगड़ी है नहीं है, खो खो है शायद, नहीं या खो खो है। खो खो है शायद, खो खो है, फिर अपना वो कौन सा हॉकी है, बट दिस अभी ये जो ये होता है ना, मोहर्रम होता है, उसमें पता है, किसी ने देखा है मोहर्रम सेलिब्रेट कैसा करते हैं? इज यस। हाँ, वो पीठ पे मारते हैं पूरा, हाँ मतलब ब्लेड वगैरह मारते हैं, पूरा खून निकलता है। हाँ। तो वो भी बहुत डेंजरस है, बट स्टिल इसके ऊपर किसी ने मतलब आवाज नहीं उठाई है, बिकॉज व्हाट नॉन मुस्लिम पीपल थिंक कि ये अपना ये नहीं है, तो हम लोग क्यों इसके ऊपर हाथ उठाइए? तो मुस्लिम लोगों खुद होके कर रहे हैं, तो इसमें अपना क्या गलती है? और मुस्लिम लोगों को इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इसको भगवान के लिए अपना त्याग मानते हैं। हाँ, तो ये अपने भी रिलीजन में भी ऐसा ही है कि मतलब ये दही हांडी में ये भी एक बोल सकते हैं कि रिलीजन्स के अंदर ही अंदर जो इसके लिए हम लोग को ये चीज भी निग्लेक्ट की जाती है, सो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट, जैसे सेड व्हाट राजश्री इंग्रे सेड कि ये रिलीजियस अपने अपने रिलीजन के क्लोज्ड है, सो दैट्स व्हाई कोई हाथ डालने के लिए नहीं जाता उसमें।
हाँ। या गॉट इट? इमोशन से जुड़ा हुआ है और हुआ सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते सेंटिमेंट हैं। है, यस, तो एक और उसके लिए वो एक और बात है कि या जैसे तृप्ति आपने बोला था ना कि पहले के टाइम ये सब नहीं होता था, तो वैसे ही अगर अभी ना ये सारे जितने मंडल वगैरह है, ये मेन फोकस हमें ये प्राइस जीतना है, इस मोटिव से प्रैक्टिस करो, ये नहीं रख के नॉर्मली जैसे पहले मोटिव होता था वैसा वाला रखे ना, तो इतने एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। यस, दिस इज द थर्ड ओपिनियन ऑल्सो कि ये पैसे से खेल खेलने से अच्छा, क्योंकि पैसे से जैसे जुड़ गया ना वैसे हो गया। एक्सीडेंट्स चालू होने या लगे। पैसा पैसे खत्म हो हो जाए जाए ना, वहां पे अगर एक सिंपल टी शर्ट रख दो ना तो कोई नहीं आएगा, सब बच्चे भाग जाएंगे। तो ये नहीं होता था, एक्सीडेंट्स नहीं होते थे, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, सब लोग अपने अंदर के खेल की तरफ से एक खुशी के माहौल के तरफ से एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म के जैसे खेलते थे, जोश में खेलते थे। अभी तो मोटिव इज जस्ट कंपेयरिंग विद द अदर पार्टिसिपेंट, एंड दैट्स व्हाई वो जो ये था, ज़ील था, एंथुसियाज्म, दैट इज गॉन। Only the main is money perspective. So या if my money is there, then only I will have. लेकिन उसके लिए मैं हाथ पैर तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो इट्स वो वैसे हो गया है। तो इट्स नो मोर लाइक अ खेल जैसा कुछ रहा नहीं। इट्स लाइक अ मनी माइंडिंग गेम वैसे हो गया। या तो अभी ना ये जो केस आया, इसका जजमेंट जब आया, उसके बाद सब लोगों को लगा कि नाउ स्टेट विल टेक मेजर्स एंड एवरीथिंग विल बी ओके, तो सब चुप हो गए। ओके, बट इन 2019 अगेन in JJ hospital, this is an example. Okay, so in JJ hospital there was a 9-year kid named Ved Kulabkar. He sat with his forehead bleeding following an accident, and doctors prepared an x-ray, and despite the Bombay High Court directive, this 14-year did not have any this insurance and anything, and there were no safety norms. There was no this helmet or anything. और ऐसे ही वो लोग जहाँ पे उन्होंने देखा कि हाँ कंपटीशन चल रहा है वहां पे चले गए और ये हो गया। ओके, एंड देयर वाज नथिंग डन regarding this. Again, Ved, a resident of Machhimar Nagar in Kolaba, he suffered a head injury from falling from the human pyramid, and his uncle told that the slum children had formed a human pyramid till only 3 to 4 tiles, और still ये हो गया, and this kid suffered from contused lacerated wound on the left side of forehead, and ऐसे ही around 148 other Govindas only in 2019 were injured across Mumbai, and around 79 had to remain in the hospital for a longer period. Now, the chief minister Devendra Fadnavis, वो खुद थाने का स्वामी प्रतिष्ठान पथक है वहां पे गए थे, एंड वहां के दही हांडी सेलिब्रेशंस में none of the safety norms were formed, neither helmets nor chest guards, nothing. And Devendra Fadnavis did not do anything. He just came as a chief guest, watched, gave some and this क्या बोलते भाषण वगैरह, और चले गए, हो गया, कुछ नहीं हुआ। और इस बात पे पीआई जो है सीनियर पीआई गणपत पिंगले, he only said that we have only received a complaint against the प्रतिष्ठान, but केस कुछ नहीं हुआ है। ऐसा ऐसे बातें ये केस होने के बाद भी चलती गई, और लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर रहा है। लेजिस्लेचर का क्या काम, ये गवर्नमेंट का क्या काम होता है, उनको उनके लिए मेन होता है डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंटेड चीज है बात खत्म, कहीं भी जाओ डॉक्यूमेंट्स दो, हो गया। या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले लॉ ही करके नहीं है, बस। लॉ ही नहीं है तो एनफोर्स कैसे होगा ना, वो वही बोलेंगे कि हाँ चलो हो गया हो गया। इट इज नॉट कंपल्सरी, गाइडलाइंस दिया गया है बट इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, तो जाओ घर पे चले जाओ। या खत्म वही। बहुत बुरा चीज है यार। और ये पॉलिटिशियन लोग, ये जो देवेंद्र फडणवीस का एग्जांपल है, नॉट ओनली देवेंद्र फडणवीस बट देयर वर मेनी अदर कॉर्पोरेटर्स, पॉलिटिशियंस, वो ऐसे ही करते हैं। वो खुद ये अरेंज करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा दे के लोगों को ललचा देते हैं, और लोगों को मैं कितना मतलब पैसा बांट रहा हूँ, लोगों को सिंपैथी दिखाते हैं, वोट होर्डिंग करते हैं अपने हिसाब से, और अपना बेनिफिट कर लेते हैं इसमें। तो दिस इज वेरी रॉन्ग।
Yeah, Dahi Handi has now become the balancing act between the sports, religion, and politics. Bas. Yeah. So this is it. या सो टू कंक्लूड हम लोग ये ओपिनियन के हिसाब से हम लोग 4-5 पॉइंट्स जैसे बोले, हाँ. वैसे एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। और जो भी इस पे पार्टिसिपेट किया करते हैं उसके लिए प्रिकॉशंस होने चाहिए। ओके, सेकेंडली द कोर्ट द देयर शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर लॉ। वो लूपहोल जो है वो निकल जाना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर लॉ व्हिच हैज टू बी एनेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। द नेक्स्ट इज द इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्पोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ऑल ऑफ यू थिंक कि दिस शुड बी अ स्पोर्ट। Yes, it should not be for Yes. money. Sport is better. Yes, so it should be it should be considered as a sport, and proper associations like we have BCCI for cricket, like that. Here also a proper association should be created who takes care of all these matters and who monitors each and every Dayandi in that area, in that district, and have a has a gives a proper guidelines, because court is there but court cannot enforce, court cannot do anything, but proper law if it is there, that will उससे काफी फर्क पड़ेगा। So this all points were there in this particular this, कि सिर्फ ये और एक गेम सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेला जाए, मतलब पैसे के लिए नहीं खेला जाए, बट इट शुड बी अ स्पोर्ट्स वेयर उसके लिए ग्रोथ हो। जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें उनका ग्रोथ हो, जैसे क्रिकेट में कोई खेलता है क्योंकि उनका ग्रोथ होता है, जैसे इसका क्योंकि ग्रोथ होता है उसके उसके लिए उसको काफी सारे पैसे मिले जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वैसे इसको भी स्पोर्टिव स्पिरिट्स के जैसे भी लेना चाहिए। एंड जो प्ले करते हैं वो एक ही दिन के लिए रहता है, तो उसमें उन जो organizer and the association should see that without saying anything the participant should be gain something about something in it, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। एक और और पॉइंट एज है. रिस्ट्रिक्शन, हाइट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जो बच्चा 14 साल का था Yes, उसका सर yes, फोड़ दिया। या yes. एक और So पॉइंट है age इसमें limit कि should be, yeah. या कि जो लेजिस्लेचर है, इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, इन्होंने जो रिटन स्टेटमेंट में दिया है, उसका एग्जीक्यूशन हो, क्योंकि एग्जीक्यूशन का एब्सेंस पूरे केस में दिखा था। सो अगर एग्जीक्यूशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, और एक चीज इसमें जो बच्चे जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका 1 डे के इस हिसाब से इंश्योरेंस भी होना चाहिए। देयर शुड बी एन इंश्योरेंस ऑल्सो, कि हाँ, अगर वो कुछ भी हो तो विदाउट विदाउट एनी मनी हो तो सब लोग करेंगे भी। इंश्योरेंस हो तो बेटर बेटर रहेगा। कि अगर ये सब होने के बावजूद कुछ जरा सा भी कुछ हो तो इन लोगों को प्रॉपर एटलीस्ट हॉस्पिटल में लेके प्रॉपर हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो। तो दैट हाँ, इन दैट और ये जो कॉर्पोरेटर है, जिस जगह में ये दही हंडी लगाया है, उसका जो कॉर्पोरेटर है उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई मर गया है या कोई इंजोर हो गया है, ये अगर उसने मेजर सेफ्टी मेजर्स नहीं किया तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है, उसका वो सब खर्चा उठाएगा। या मानसी कहाँ गई? या शी इज नॉट स्पीकिंग। मैंने बोल दिया ना पॉइंट्स मेरे। ओके. इज इट। तो अपना आज का लास्ट सेशन था, तो या नाइस हैविंग अ डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। तो या और हाँ, स्टे ऑन बहुत दिस कुछ कुछ ग्रुप। सीखने को मिलेगा। ए ग्रुप डिलीट मत करो। हाँ नहीं, मैं डिलीट नहीं, वही कह रही हूँ, डोंट डिलीट दिस ग्रुप अनलेस अभी एंड अनटिल, क्योंकि रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ वगैरह बनाने रिकॉर्ड में हेल्प लगेगी ना अभी साथ में. लगेगी। यस, तो हाँ. रिकॉर्ड में लगेगा, फिर बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाए, रिजल्ट विजल्ट हो जाए, तभी चाहिए तो बाद में यू कैन जस्ट डिलीट इट। डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके रखेंगे, वो तब तक कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो पर इफ लेट्स या एनीथिंग एंड इट इज हियर. देयर, हाँ. या इफ एनीथिंग इज, अगर कुछ है डिस्कस, मतलब ऐसा कुछ पॉइंट जो आपको नेसेसरी लगे या कुछ हेल्प लगे, तो वी कैन डेफिनेटली शेयर ऑन दिस ग्रुप आल्सो। अच्छा, या रिपोर्ट बनाने के लिए पूरे 5 केस मेंशन करना पड़ेगा ना? यस यस यस, ये इसका पूरा उसका फैक्ट वगैरह भी लिखना पड़ेगा ना, फैक्ट, जजमेंट, और उसके नीचे अपना रिपोर्ट, राइट? ये यस। और ये राजेश ने आज का तूने उसमें डाल दिया क्या वर्ड फाइल, हाँ. आज के जो केस का है? नहीं, अभी तक नहीं डाली है, डाल दूंगी वो. डाल दो ना वो प्लीज। हाँ. तो फिर क्या कपड़ों का केस वी हैव टू राइट हाँ. फैक्ट्स इश्यूज जजमेंट करने के बाद, मैंने भी जो केस मेरा विक्रम चैटर्जी put it on your paper, मैंने
वो थोड़ा सिंक्रोनाइज छोटा करके मुझे नेट से जो मिला वो छोटा छोटा वाला ही दिया है, उसमें से भी आप फैन ये जो है छोटा कर सकते हो तो कर दो, ये तो ये